Hello, Scorpio people. I'll be doing your reading based on love, relationships, and lovers. So, this is a love reading. Basically, the theme is love and relationship. So, you can watch it as a sun sign, Scorpio moon sign, and Scorpio Venus sign, and Scorpio rising sign. So, these four signs will validate in this case of reading. And one more thing which I need to mention, that in this reading, since I'll be doing the reading for you as well as your partner, so both the individuals are in this reading. So this could be, if Scorpio, if this is your side, this could be your partner's side, or this could be your partner's side, this could be your side. Just take it as it resonates with you. Just flip the energies. Take it as it resonates with you. Just you need to flip the energies. That's it. It's at that simple. So let's start with your reading, Scorpio. Wish you all the very best in your love life. I'll be using 4 oracle decks. One is Lover's Oracle deck, Love Oracle deck, that is. One is Romance Angels Oracle deck. One is Fairies Oracle deck. And the last one is True Emotions Oracle deck. So I'll be using multiple decks in this reading for you to gain more clarity. A better picture comes out so that, and you'll have a better understanding of this reading. It will help you and guide you in your life. So do have faith and trust in this reading, and it could be possible that it might resonate with some Scorpio, it might not resonate with some Scorpio. So because since it's a general reading, collective reading, so it is very well possible that it might resonate with some Scorpios, it might not resonate with some Scorpios. Okay, Scorpio, so let's start with your reading. I'll be covering 3 categories, that is feelings, card of feelings, card of intentions, card of actions. That's how this reading will proceed. Okay, so let's start with feelings, Scorpio. Well, this is the first card of feelings for you, Scorpio. This could be either for you or your partner. It says, life is a series of constantly shifting cycles. Certainly, change is the only thing that is constant. It's always shifting, you know. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. So go with the flow. You are being asked by the universe to go with the flow. You will be surprised where it leads. So don't resist any kind of change. If a transformation is needed, if a change is needed, if a metamorphosis is needed, समटाइम्स सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि चेंज लाना ज़रूरी होता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए ही होता है. तो आपकी लाइफ में शायद ऐसा कुछ मोड़ आया होगा जो आपको एहसास दिला रहा है कि अ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नीडेड. इट कुड बी एनीथिंग विद द लव सिचुएशन, with your particular partner. So don't resist that change, because if you resist it, it will create a blockage in your life, and hence it will become burdensome and stressful, जो कि आपके पूरे शरीर में भी वो स्ट्रेस वाइब्रेशन रहेगा. उससे डिजीजेस हो सकती है बहुत सारी, बिकॉज स्ट्रेस इज सर्टनली हार्मफुल फॉर अस. इट रिलीजेस द हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल. It's a stress hormone. So don't resist the change. Let it flow. Flow with the nature gradually, smoothly. Natural flow hone dijiye of life. When you resist the natural flow of life, it creates unnecessary stress.
So just go with the flow. Take it easy. Make your love life easy. Take it easy. Just go with the flow smoothly, and you will be surprised where it leads. डरिए मत. Don't be scared. Don't be insecure of any kind of newness or change or transformation that is meant for you by the universe. Just go with the flow. Trust in the process of change and transformation, and you will be surprised where it leads. जो होगा अच्छे के लिए होगा, definitely. Let me see what the angels have to say. Separation. Time apart from your partner is on the horizon. तो ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में शायद आ सकता है या आ चुका है कि जहाँ पे सेपरेशन ज़रूरी है. कभी कभी एक साथ रहते रहते हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, बहुत गलत तरीके से समझ लेते हैं. ऐसा होता है. थोड़ा गैप दीजिए अपने रिलेशनशिप को, थोड़ा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, थोड़ा दूर रह के देखिए. डोंट क्लिंग ऑन टू द अदर पर्सन. ऑब्सेशन, एडिक्शन, इससे क्या होता है, इंसान एकदम कुछ ज़्यादा ही तरीके से नज़दीक चला आता है, हावी हो जाता है. ये सब चीज़ें हावी कर देता है आपके ऊपर. तो इससे थोड़ी देर दूर रहिए, सेपरेट रहिए, अलग रह के देखिए. फ़ोन पे कुछ दिन बात मत कीजिए, व्हाट्सएप मत कीजिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और इसको फिर एनालाइज कीजिए. मे बी इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोला जा रहा है आपके लव लाइफ में, इसी चेंज के बारे में बोला जा रहा है. द रीज़न कुड बी एनीथिंग. वो मेरे से बेहतर आप जानते होंगे कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है. लेकिन गाइडलाइंस एंजल्स ने, यूनिवर्स ने दिया है जो आपको फॉलो करना चाहिए आपके बेटरमेंट के लिए, टू इन्हेंस योर लव लाइफ. सो टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन. थोड़ा अलग रह के देखिए, हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू टू डू एंड गाइडिंग यू इन सच अ वे. Okay, let's move on to the card of intentions. Soulmate. You've got a soulmate card, Scorpio. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. अगर आपके लाइफ में कोई सोलमेट आया है, हो सकता है फिर फिज़िकली वो ऑलरेडी आ चुका या आ चुकी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी स्पिरिट में है. आप लोग स्पिरिट में, एस्ट्रल प्लेन में कनेक्टेड हैं, जो कि स्पिरिचुअल प्लेन है. फिज़िकली एक दूसरे को आमने सामने नहीं मिले हैं एज पर दिस कार्ड. सो बिलीव दैट यू विल मीट योर सोलमेट वन डे. ये बिलीफ सिस्टम में लाइए, तभी जाके ये फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में बदलेगा. मेरे यूट्यूब चैनल में मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियोस हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है, हाउ इट्स नीड टू बी डन, व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियो आप देखिए, रेफ़र कीजिए, आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा. बहुत चीज़ों के ऊपर मैनिफेस्टेशन का वीडियोस मेरा है बनाया हुआ. सो रेफ़र टू दैट. बेसिकली मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ, मैनिफेस्टेशन इज़ नथिंग. जो ड्रीम्स को हम लोग रियलिटी में, डिज़ायर्स को रियलिटी में लाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसी को मैनिफेस्ट किया जाता है, उसी को मैनिफेस्टेशन बोला जाता है. और वो करते हैं अपने थॉट से, अपने थॉट से करते हैं. ओके, गॉट इट. सो इफ़ यू बिलीव इट that you are going to get your soulmate, मैनिफेस्टेशन फिज़िकली भी तभी पॉसिबल होगा. अदरवाइज़ फिज़िकल मैनिफेस्टेशन पॉसिबल नहीं होगा. आप आमने सामने मिल नहीं पाएंगे आपके सोलमेट को. ओके, एंजल सेज रोमांटिक फीलिंग्स. रोमांटिक फीलिंग्स. योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. ये सोलमेट के लिए आपका जो फीलिंग्स अभी मन में शायद उभर रहा है, या फिर आप सोच रहे, यू आर थिंकिंग डीपली, बहुत सारे सवाल जवाब शायद चल रहे हैं आपके लाइफ में. आप शायद चाह रहे आपके लाइफ में कोई सोलमेट आए. तो ये एंजल्स का कहना है कि all these feelings are romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. आप एक्सप्लोर कीजिए, बाहर मिलिए, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, क्या पता उन्हीं में से कोई सोलमेट हो आपके लिए.
ऐसा हो सकता है, या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है, फिज़िकल वर्ल्ड में भी आमने सामने भी हो सकता है। इसलिए घूमिए फिरिए, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, ऑनलाइन कनेक्ट कीजिए किसी से। ओनली देन योर फीलिंग्स विल बी रियल। सो इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोर कीजिए, अपने लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, तब जाके आपका लव लाइफ में आप सोलमेट पा सकेंगे। Moving on to the third card, that is the card of action. Scorpio people, this is the card of action. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul. Scorpios are very soulful people, ruled by Pluto and Mars. So, when you pass from this world, you take nothing but your soul. हम लोग क्या लेके आते हैं? आत्मा लेके आते हैं, आत्मा लेके जाते हैं। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ वापस जाते हैं। सिर्फ आत्मा ही हम लोग के साथ रहती है। शरीर तो जल जाता है, जल के राख हो जाता है, या फिर दफना दिया जाता है। तो ये सोल ही है जिससे ये कनेक्टेड मेमोरीज़ जो हम लव्ड वंस के साथ शेयर करते हैं, ये मेमोरीज़ हम लोग के साथ जाती है। फिर नेक्स्ट लाइफ में जब इनकारनेशन होता है, बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, तब वही मेमोरीज़ फिर आता है, वही कर्मा फिर आता है। उस हिसाब से हम लोग का कर्मा सेटल होता है, बैलेंस होता है, कार्मिक अकाउंट क्लियर होता है। Isn't it? So, the guidance from the angel says, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Certainly, positive thinking is a must in everything you do. Not only your love life, in everything you do. अपने आप को एम्पावर कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स डालिए दिमाग में। देखिए मेरे मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी वीडियोस है, पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर भी वीडियो है कि पॉजिटिव थॉट्स कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से बोला जाता है यूनिवर्स के सामने या मन ही मन में, कैसे थॉट्स होने चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन किसको कहते हैं। इसके ऊपर मेरा जो वीडियोस हैं आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। इससे आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, लव लाइफ में ग्रोथ होगा, हर एक एरिया, हर एक फील्ड में ग्रोथ होगा, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव एफर्मेशन। सो यहाँ पे जो कहा जा रहा है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। नेगेटिव मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि यही मेमोरीज़ आप अपने साथ लेके जाएंगे आपके सोल के साथ। सो क्रिएट ब्यूटिफुल मेमोरीज इन योर लव लाइफ विथ योर पार्टनर, विथ योर ब्यूटिफुल पार्टनर, वेदर इट्स ही, वेदर इट्स शी। इंसान को देखिए, सिर्फ बाहरी रूप मत देखिए। इंसान वो कैसा है, उसके दिल को पहचानिए, उसको पहचानिए, उसके विचार को देखिए। Isn't it? That's what true love is. So you don't be pessimistic. The angels are saying stay optimistic towards your love life, in your thoughts. क्योंकि यही thoughts आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे मेमोरीज क्रिएट करेंगे। नेगेटिव थॉट्स होगा तो नेगेटिव मेमोरीज होगा, पॉजिटिव थॉट्स होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव मेमोरीज होगा। और यही मेमोरीज फिर आप लेके जाएंगे, जब आप दुनिया छोड़ के जाएंगे तो यही मेमोरीज लेके जाएंगे, और वापस भी आएंगे जब नेक्स्ट इनकारनेशन में, तब इसी मेमोरीज़ को, यही सब मेमोरीज़ को लेके आएंगे। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, थिंक पॉजिटिवली, एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। विश्वास रखिए अपने आप पे, अपने पार्टनर पे, अपने लव लाइफ पे। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। शब्द छोटा है लेकिन इसका असर बहुत 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 बड़ा है। बिलीफ सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है हम लोग के दिलो दिमाग में। तो पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस सर्टेनली। निराश मत होइए, क्योंकि निराश होने से कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, आपका लव लाइफ शून्य ही शायद रह जाएगा। सो पॉजिटिव थिंकिंग बिल्ड अप कीजिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। दिस इज़ फॉर द एक्शन कार्ड। सो एक्शन में आपको ये करना है स्कॉर्पियो पीपल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दिस साइड।
Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि ऑब्सेशन, एडिक्शन, कंट्रोलिंग इश्यूज, ईगो इश्यूज, ये सबसे लव नहीं होता, ये लव का पहचान नहीं है. स्पेस दीजिए, ऐसा मैंने कहा था शुरू में. स्पेस दीजिए एक दूसरे को. क्लिंगिंग मत होइए, हावी मत होइए एक दूसरे के ऊपर. तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो. अरे भाई, वो तुम्हारा ही है, लेकिन खुद से प्यार करो और उसको भी प्यार करो. खुद से प्यार करना मत छोड़िए. कभी कभी लोग इतने ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि कंट्रोल इश्यूज उससे डेवलप होता है, तब लव का एकदम बैंड बज जाता है. ऑनेस्टली सेइंग, लव डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि गला दबा देने के लायक है ये. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? इससे लव चोक्ड हो जाएगा, आपका लव लाइफ चोक्ड हो जाएगा, आपका पार्टनर चोक्ड हो जाएगा. सो डोंट बी ऑब्सेसिव, डोंट क्रिएट एनी कंट्रोल इश्यूज इन योर रिलेशनशिप. Don't be overly emotional. Don't be addictive of your partner. स्पेस रखिए एक दूसरे के बीच में, बैलेंस रखिए, तभी जाके आपका लव ग्रो करेगा एक सिंपल तरीके से. लेट देयर बी क्लोजनेस, क्लोजनेस रखिए बिटवीन यू, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस. क्लोजनेस भी ज़रूरी है, स्पेस भी ज़रूरी है. दैट इज़ हाउ इट बैलेंसेस, यू नो. तब जाके बैलेंस सही मायने में होगा, नहीं तो उतर चढ़ाव होता रहेगा आपके लव लाइफ में. लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स. गिविंग बनिए अपने पार्टनर के प्रति, यू नो, गिविंग बनिए. क्लोजनेस भी रखिए, स्पेस भी रखिए. लेट्स सी व्हाट एंजल्स हैव टू से. रिकंसिलिएशन. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ. हो सकता है रिकंसिलिएशन मतलब जब बीच में सेपरेशन हुआ, पहले ही सेपरेशन का कार्ड आया था. सो यहाँ पे देखिए, रिकंसिलिएशन का भी कार्ड आया है. हाउ इट्स रिलेटेड. सेपरेशन का कार्ड आया है. सो रिकंसिलिएशन का टाइम भी शायद आया होगा किसी स्कॉर्पियोज के लाइफ में. किसी के लिए सेपरेशन का टाइम चल रहा होगा, किसी के लिए रिकंसिलिएशन का टाइम चल रहा होगा. रिकंसिलिएशन मतलब फिर से वापस आना, फिर से जुड़ना एक दूसरे के साथ. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ. आपके पास्ट से कोई वापस आ रहा है आपके जीवन में. शायद आप इंसान को जानते हैं, शायद आप एक दूसरे के लवर रह चुके हैं या स्पाउस रह चुके हैं. सो हावी मत होइए. अगर फिर से वो वापस आ रहे, क्या पता शायद वो गए थे दूर इसी वजह से कि आप ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो गए, ओवर ऑब्सेसिव हो गए, एडिक्टिव हो गए. ऐसा करने से लव चोक्ड हो जाता है, जैसा मैंने कहा अभी. स्पेस दीजिए एक दूसरे को. क्लोजनेस बरकरार रखिए, लेकिन स्पेस भी दीजिए, क्योंकि स्पेस भी ज़रूरी है. हमेशा चिपक के बैठना, एक दूसरे के ऊपर बैठना, एक दूसरे को क्लिंग करके रहना, दीज आर ऑल मेंटल थिंग्स. ऐसा करने से लव जिंदा नहीं रह पाएगा. इस बात को समझ लीजिए. सो मेंटेन योर क्लोजनेस, एट द सेम टाइम मेंटेन योर स्पेस. सो अभी फिर से मौका मिल रहा है, दोबारा आपको मौका मिल रहा है रिकंसिलिएशन का. आपके पास्ट से ही कोई पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ रहा है. सो दिस टाइम डू द नीडफुल, डू अकॉर्डिंगली. हावी मत होइए अपने पार्टनर के ऊपर. बैलेंस मेंटेन कीजिए, तभी रिकॉन्सिलिएशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड सेज look inside yourself. Look
deep within yourself. Examine what is causing you to feel this way. जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में सेपरेशन को लेके, ऑप्टिमिस्टिक आपको रहने के लिए बोला जा रहा है फ्रॉम एंजल्स साइड. एंजल्स आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए बोल रहे हैं. इसका मतलब आप शायद कुछ नेगेटिव फेजेस से जा रहे हैं अपने लव लाइफ में. इसका जवाब सवाल का यही है कि अपने अंदर को टटोलिए, अपने दिलो दिमाग को टटोलिए, क्योंकि आंसर आपके पास है, आपके अंदर है आंसर. अपने आप को लेके बैठिए, अपने आप से बात कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मन को, माइंड को शांत कीजिए, क्वाइटन कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सवाल जवाब कीजिए. आपके आंसर आपके पास ही है, दूसरों के पास नहीं है. Introspect, my dear. Introspection can open hell lot of doors and windows in your life, especially in this case, in your love life. Angel says, release your ex. The time has come to clear your energy. Release your ex. आपके रिलीज़ योर एक्स इन द सेंस ये इंसान भी हो सकता है, या फिर रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया था इसलिए हो सकता है कोई हैबिट्स के बारे में भी बोला जा रहा है. बिकॉज एनर्जी, द मेन थिंग इज एनर्जी. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हैबिट, it could be in the form of a person, it could be anything. But what you're being asked to do by the angel, that is release your negative patterns, release your negative energies, release your ex जो past में था उसे let go कर दीजिए. ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, चेंज लाइए, पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक. द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी. अपने अंदर जो नेगेटिव एनर्जी आपने भर के रखा हुआ है, शायद आपको खुद पता नहीं है कितना टॉक्सिसिटी आपके अंदर शायद भरा हुआ होगा, तो वो टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, वो टॉक्सिन्स रिलीज़ कीजिए. टॉक्सिसिटी शरीर के लिए, मन के लिए, दिलो दिमाग के लिए बहुत 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 ज़्यादा हानिकारक है. हम लोग को अंदाज़ा भी नहीं होता है कितना नुकसान कर देता है हम लोग के लाइफ में, हम लोग के रिलेशनशिप में. पार्टनर के साथ बोलिए, चिल्ड्रन के साथ बोलिए, पेरेंट्स के साथ बोलिए, ऑफिस कलीग्स के साथ बोलिए, खुद के साथ बोलिए, कितने डिजीज़ेस फॉर्म करते हैं टॉक्सिसिटी से, टॉक्सिन से. सो रिलीज़ दोज टॉक्सिन्स, रिलीज़ दोज नेगेटिविटी, रिलीज़ दोज energies, the past negative energies, and transform. Stay optimistic, stay positive. यही बोला गया था. So this could be your side, Scorpio, or this could be your partner's side. In the same way, this could be your side, Scorpio, or this could be your partner's side. Just choose as it resonates. Flip the energies. Okay. So let's see what the action card says. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. अभी इस कार्ड में बोला गया था, see, look inside of yourself. Look inside of yourself बोला था. मैंने बोला था कि आंसर आपके अंदर ही है. अगर आप क्वेश्चन ढूंढ रहे, सवाल जवाब कर रहे, तो आंसर आपके अंदर है. सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, चुपचाप एक जगह शांत होकर बैठना, मन को शांत करना, ये सब करना ज़रूरी है. तब क्या होता है, सबकॉन्शियस से धीरे धीरे आंसर्स आपके कॉन्शियस माइंड में आएगा, आपको पता चलेगा. योर इनर गाइडेंस विल गाइड यू, द इनर वॉइस विल गाइड यू. सो एक्शन के कार्ड में आपको यही करना पड़ेगा. डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर. आंसर आपको मालूम है, आंसर आपके पास है. किसके पास है? आपका जो इनर सेल्फ है उसके पास आंसर है. आपका जो हायर सेल्फ है उसके पास आंसर है. सो डिग डीप इनसाइड यू. Look into your heart, deep into your heart, because your answer exists there.
That's the place where your answer lies. And do what feels right to you. जो सही लगे वही कीजिए, जबरदस्ती कुछ मत कीजिए। किसी और को खुश करने के लिए ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ करना सही नहीं होता है, उसका अंजाम सही नहीं होता है। जो सही लगता है वही कीजिए। और सही कैसे लगेगा? जब आप खुद के साथ बैठेंगे, सबकॉन्शियस आपको गाइड करेगा, कॉन्शियस तक आंसर आएगा, तो यू विल गेट द राइट आंसर। इट विल टिक एंड इट विल क्लिक। ओके, नाउ आई नीड टू डू दिस, और नाउ आई नीड टू से दिस। सो ब्रिंग इट इनटू एक्शन. This is being asked by the universe. What do you? Chemistry. The angel's guidance. Chemistry. There is a strong magnetic attraction here. केमिस्ट्री के बारे में बोला जा रहा है, आपके लव लाइफ के बारे में बोला जा रहा है कि आप दोनों के बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत उम्दा केमिस्ट्री है. There is a strong magnetic attraction here. ये हो सकता है इस बात को लेके आपके मन में कोई डाउट चल रहा है, तो ये आंसर्स है एंजल के तरफ से कि आप दोनों के बीच केमिस्ट्री है. हम लोग बोलते हैं ना कि इन दोनों के बीच बहुत केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है. केमिस्ट्री क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होता है, बॉन्ड ऑफ लव होता है, समझौता, एक दूसरे को समझे. सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी अच्छा हो, इससे सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बनता है. केमिस्ट्री बहुत चीज़ों से बनता है. फिज़िकल इंटीमेसी भी चाहिए, मेंटल इंटीमेसी भी चाहिए, मेंटल मैच भी चाहिए, इमोशनल मैच भी चाहिए, स्पिरिचुअल मैच भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. तब जाके इन टोटलिटी में ये केमिस्ट्री होता है. एक दूसरे के साथ जो केमिस्ट्री का बॉन्डिंग होता है, जैसे केमिकल्स में केमिस्ट्री होते हैं, आप सब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो ये सेम चीज़ है, क्योंकि हम लोग भी एनर्जीज़ हैं और एनर्जी में भी केमिस्ट्री होता है. So dig deep into your heart and you will get the answer. If you have any doubts related to this, you will get the answer, provided you introspect, provided you dig deep inside your heart, because the answer is already lying there inside your heart. So this is the action you need to do, Scorpio people. Okay, now I'll be moving on to the True Emotions Oracle deck. Universe, please guide the Scorpio people in their love life and their partners also. What they need to do, what changes do they need to bring. Please guide them. Please guide them through these cards. They need help. Please guide them. Tell them what changes do they need to do in their love life. Okay. Now I'll be picking up another card as a fairy guidance. It's the card of Fairy Oracle deck. So you can, Scorpio signs, you can watch it as a sun sign, as a moon sign, as an ascendant sign or rising sign, and Venus sign. Since it's a love reading and Venus is the goddess of love, so you can watch it as a Venus sign also. That is,
if Venus is sitting in the very Scorpio zodiac, respectively Scorpio zodiac sign. That is how we see the Venus signs. So you can refer to your birth chart. Okay. So this card says, True Emotions card says, I am dying for you. Come back, please. What a beautiful message. I am dying for you. Come back, please. So, Scorpio people, this could be your feelings, this could be you, or this could be your partner. देखिए आप में से कौन इस तरह से और या फिर इस तरह के फीलिंग से गुजर रहे हैं. आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़. यहाँ पे पहले ही शुरू हुआ था सेपरेशन से. हो सकता है कोई कोई स्कॉर्पियोज ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, अलग रह रहे हैं. रिकन्सिलिएशन का भी बात आया था यहाँ पे. तो मे बी बिकॉज सिंस यू आर स्टेइंग सेपरेटली, या फिर फ़ोन पे बात नहीं हो रहा है, बात बंद कर दिए हैं किसी एक ने, या आपने या फिर आपके पार्टनर ने. सो समवन, इधर यू और योर पार्टनर इज सेइंग आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़. वापस जाइए, वापस जाइए. कुछ सीख लीजिए इस सेपरेशन से कि क्या कमी थी, कैसे उसको पूरा करना है. बिकॉज वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, यू नो. तभी जाके हम लोग ग्रो कर पाते हैं इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, एंड विच इज़ वेरी मच मैंडेटरी एंड बेसिक रिक्वायरमेंट. ग्रोथ अगर ना हो तो लाइफ स्टैग्नेंट हो जाता है. तो ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. वापस जाइए अपने पार्टनर के पास. एंड द फेरीज हैव टू से एज अ गाइडेंस, मोटिवेशन. ये मोटिवेशन का कार्ड आया है एज एन overall an outcome of your entire reading. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. So ये भी action के बारे में बोला जा रहा है. So ये आपको अब action में करना पड़ेगा. वापस जाइए. अगर आप फीलिंग में सोच रहे हैं, आपकी पार्टनर आपको कॉल बैक कर रही है, तो फ़ोन उठाइए, बात कीजिए, या फिर सामने जाके मिलिए. क्योंकि फेरीज़ का भी यही गाइडेंस है, मोटिवेशन. अपने आप को मोटिवेट कीजिए ऐसा करने के लिए. फ़ोन को और रिजेक्ट मत कीजिए. सेपरेशन का पीरियड शायद ख़त्म हो गया किसी किसी स्कॉर्पियोज के लिए. सो मोटिवेट योर सेल्फ, motivate your partner, motivate your love life in totality, in general. So when spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there is something you have been merely thinking, they say get busy and do it. ये करके दिखाइए. फ़ोन पे बात करना शुरू कीजिए अगर आपने बंद किया हो, या मिलना बंद किए हैं, अलग रह रहे हैं, तो साथ जाके एक साथ रहिए. फिर से शुरू कीजिए अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन, अपना लव लाइफ, एंड मेक इट इवन मोर ब्यूटिफुल. पहले से भी और ज़्यादा खूबसूरत बनाइए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्कॉर्पियो पीपल फॉर योर लव लाइफ. हैव अ ग्रेट डे. दिस इज़ अ बाई मंथली रीडिंग, and wish you all the very best once again. Thanks for watching my video. Do subscribe to my channel and do comment me whether it resonated with you or not. Did you like it or not? Please do let me know in my comments. Thank you so much, Scorpio people. Take care. Bye-bye.